जी मनोज जी, आपका स्वागत है स्ट्रीम में। हाँ सर। आज छत्तीसगढ़ में अभी सुदर्शन चैनल पे देख रहा था। जी। तो 40 लोगों ने आज इस्लाम छोड़ा है सर। अच्छा, अरे वाह। हाँ। छत्तीसगढ़ में। हाँ सर। और अच्छा, कुछ वजह बताई गई उसमें? नहीं, घर वापसी का वो चल रहा था वो कार्यक्रम फिलहाल में। अच्छा। हम्म। और एक बात कहनी थी जी। मुस्लिम भाइयों से। अगर ये हम्म। यानी कि गलत काम करके अगर जन्नत मिलती है हम्म। तो अच्छे काम करने पर क्या मिलेगा? हम्म। ये इतना ही पूछना था चलिए, देखिए इनको। इस्लाम के हिसाब से आप चाहे गलत काम करिए चाहे अच्छा काम करिए, जब तक आपके अंदर ईमान नहीं आ जाता है आपको जन्नत नहीं मिलेगी। आपने तो काफी गलत काम किए लेकिन राय के दाने के बराबर भी आपके दिल में ईमान है, तो दो ऑप्शन होते हैं। या तो आपको अल्लाह जो है, इस्लाम वाला जो अल्लाह है, वो आपको जो आपने गलत काम किया उसकी सजा देगा और उसके बाद आपको जन्नत में डाल देगा। या तो फिर दूसरी चीज ये है कि अल्लाह जो है आपके कोई एक अच्छे काम की बुनियाद पे आपने जितने काम किए, गलत काम किए, जितने गुनाह किए, वो सब माफ कर देगा अल्लाह। तो और लेकिन अगर आपके अंदर ईमान नहीं है तो भले से आप कितने भी अच्छे काम कर लीजिए, आपको अल्लाह जन्नत नहीं देगा। अगर आप कुफ्र वो और शिर्क में मरते हैं, आपकी मौत हो जाती है, तो आपके लिए जन्नत हराम है। तो वही मेरा कहना है, ये मुसलमान लोग क्यों नहीं समझ पा रहे ये चीज? वो उनको समझाने के लिए तो हम यहाँ पे चैनल ओपन करके बैठे हैं ना सर। हाँ। चलो, थैंक यू आपसे। आप बहुत अच्छा ओके। काम कर रहे हो। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओके। रुद्र जी जुड़े हैं हमसे, स्वागत है आपका रुद्र जी। Thanks for letting me in. I really appreciate that. I've been following ex-Muslim channels since for a while now, for a month or two, and I find yours as the best for a couple of reasons. You keep very cool. You have a lot of patience. You entertain. हम्म। Rudra ji, is it possible that you speak in Hindi? If not, if you're not comfortable, then you can go ahead with English. But if you can speak Hindi, तो बहुत सारे हमारे जो दर्शक है वो हिंदी में बातें समझते हैं। तो अगर आप हिंदी में बोल सकते हो तो बोलिए, वरना इंग्लिश इज ऑल्सो फाइन। Yes, I'm not that comfortable with Hindi, but I'll try. So, I mean, ठीक है। I do follow, I do understand everything, ठीक। but ओके। not with from Hindi is not my my, should I say, फर्स्ट लैंग्वेज। yeah, first language. So not that ठीक है। comfortable, and I don't live in India, so my interaction is very little. नो Uh, इश्यू सर, इफ यू वांट टू कंटिन्यू इन इंग्लिश यू आर मोस्ट वेलकम। yeah, so I would rather like I mean, and I in between I'll how about like this English. So I'll हम्म। speak a little bit of Hindi and a little bit of English if that's okay. Uh, या श्योर। yeah, so what I mean, first of all, my huge compliment to you as a person, like not because you left Islam, but the way you conduct the channel. that's हम्म। that's that's remarkable. So you have a lot of patience. You deal with people with a lot of grace. You respect them. You make sure that everybody else on the channel also maintains that quorum pretty well. So I think that's a huge plus for you, as in probably it's your individual quality that gets reflected into your conduct, which is very थैंक्स important. अ लॉट जी। So that's थैंक्स अ लॉट सर। yeah. And second most important thing is um, you are one of those few channels where you are the only conductor. Like there is a, I mean, there are other individuals who are doing equally important jobs, like Sachwala and Azad Koram and others, but like their channel, like the host itself, the crowd of hosts is four or five, so there is very हम्म। little there's very little room for the guests to come and appear, and they, if they find that person doesn't match their personal opinion, they just kick them out. That's so unfair, because you'll have to deal with moments who are हम्म। not,
who are not used to logical arguments. You know, Right. it's not that they are bad people, but the kind of ecosystem they live in is so very Hmm. corrupt that their minds are completely washed out and Hmm. cannot listen to the logic. So, and they cannot be rational. So you have to deal with Hmm. that, like it or not, because that's what you will have to do. And that's where you are doing an excellent job. So kudos to you. And I mean, you may continue. You may want to. I would prefer. I mean, you must have seen a huge support coming from Hindu community, especially the Indian Hindu community. I guess Right. one of the prime reason for that, and you might have been hugely surprised, I think, but one of the prime reason was, like, uh, uh, back just before you guys started all these ex-Muslim channels, uh, Yeah. people in the Hindu community always wondered how comes things which are so very logical doesn't make sense to even educated Muslims. So Hmm. that was a huge shock and setback for Hindus. That how come it cannot be that everybody will be irrational in that Muslim community, but Hmm. finally, and so for I've spent like a good amount of years. Probably I'm elder than you, Hmm. but we never saw, at least in the public media, or on any platform, you would find all those bearded people who come and defend Islam. Even those that Yeah. come, they would also Okay. they would also defend. Uh, Yeah, यस रुद्रा जी, थोड़ा मैं आपने जो इंग्लिश में कहा है, मैं दर्शकों को थोड़ा हिंदी में वो शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूँ कि आपने क्या कहा है, sure. सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड। रुद्रा जी कह रहे हैं कि उनको हमारा ये चैनल जो है, जी सलीम जी, मैं बिल्कुल बता रहा हूँ कि रुद्रा जी ने क्या बताया है। रुद्रा जी कह रहे हैं कि उनको जो ये हमारा जो चैनल है इंडियन एक्स मुस्लिम साहिल, वो बहुत ज्यादा उनको पसंद है, और उसकी वजह ये है कि मैं जो हूँ वो बहुत ही कामली अपने जो कॉलर्स हैं उनको मैं डील करता हूँ। और उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने जो बाकी लोग हैं जो इस मूवमेंट को चला रहे हैं, वो भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनके वहाँ प्रॉब्लम, अच्छा ये मेरी बात नहीं है, जो रुद्रा जी ने बोला है मैं वो आप लोगों को बता रहा हूँ। तो इनका कहना है कि जो दूसरे लोग भी जो इस मूवमेंट के लिए काम कर रहे हैं, तो वो बेशक वो लोग काम तो कर रहे हैं, लेकिन जो उनका जो तरीका है काम करने का, उसमें थोड़ा इनको पसंद वो नहीं आ रहा है, क्योंकि वो रुद्रा जी के मुताबिक वो मुस्लिम कॉलर को मौका नहीं देते हैं, और जो उनके जो होस्ट होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम इस चैनल पे हैं तो मोस्टली हमारे साइड से 1 या 2 लोग होते हैं और पूरा स्ट्रीम मैं कंडक्ट करता हूं। तो उनका कहना है कि वहां पे बहुत सारे होस्ट होते हैं, तो बाकी लोगों को आने के लिए जगह ऐसे ही कम हो जाती है। और जब कोई मोमिन कॉलर आता है तो रुद्रा जी का ये कहना है कि जो दूसरे चैनल्स है उन उस पे उनको बोलने का मौका नहीं मिलता है। हालांकि हमको पता होना चाहिए कि एक मोमिन अगर आके बात करता है तो नॉट नेसेसरी कि वो लॉजिकल बात करेगा, वो लॉजिकली काउंटर करने की कोशिश करेगा। तो इनका कहना है कि कम से कम उनको बोलने का मौका दिया जाए। तो रुद्रा जी ये इस चैनल के बारे में इन्होंने इतनी बातें की है। रुद्रा जी, यू अग्री टू व्हाट आई हैव सेड? आई मीन आई Yeah, होप yeah, आई yeah. हैव। Absolutely, absolutely. I mean, I'll try in Hindi so that we don't waste time on this while I'm here. So I mean, so पहले ये मैं बताना चाहता था. So and then the second thing was uh, 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 on this reward and punishments, which is I think the hallmark of Islamic ideology, right? कि आपको जन्नत मिलेगी या you will go to the Jahannam. So my question was and is, it is not based on your karma, as you kind of explained, right? Irrespective of what you do or don't do, it is at the discretion of the so-called Almighty, and He decides. He can even forgive all your bad deeds, which is so bizarre, because we come from a very profound karmic background where
karma is something that cannot be dissolved even by the Almighty. You have to go through its fruits, like it or not. So bad karma has bad fruits, good karma has good fruits. They don't offset each other. It's very important. The karmic principle is very, very clear. And it is applicable to all human beings and not just Hindus, Buddhists, or Jain. So the karmic principle says very categorically. Rudraji, let's not talk about other religion. What do you say? Pardon me? Rudraji, Indian Agnostic is, one of the core team member of our channel. And, since we have this very specific, policy that we will neither criticize or promote any other religion or, the belief that they have. I'm just showing the differences. So people who come with some of the questions people raise, why Muslims don't understand this or that, they come with the background or the baggage of the karma philosophy, which is completely not there. So we cannot just dealing the two and because your crowd or the audience that come, most of them, they have the questions and they get puzzled and by the attitude of Muslims who just cannot accept this rational karma theory, and hence their questions are have that background, and that's what I was trying to point out. It's no not issue, sir. Right. Anything apart from this, Rudraji? Oh, so what do you? I mean, this is a kind of a common question for everyone. So, what do you see the future of ex-Muslims, especially in India? Because do you think this movement will receive more momentum in near future, or I mean, is it like we are 20 years away, like 30 years away, 10 years away? I mean, where do you think where you will have a critical mass of ex-Muslims? Yeah. तो रुद्रा जी पूछ रहे हैं कि जो एक्स मुस्लिम मूवमेंट अभी चल रहा है उसका इफेक्ट हमको कैसे देखने मिलेगा या कितना देखने मिलेगा, कितना इफेक्टिव है, यानी उसका जो रिजल्ट है वो हमें कितने साल में देखने के लिए मिलेगा एंड हाउ इफेक्टिव इट इज। तो मैं रुद्रा जी ये कहना चाहूंगा कि देखिए हमारे साइड से तो हम काफी मेहनत कर रहे हैं इस मूवमेंट को चलाने की, और लॉजिकली जो गलत चीजें हैं इस्लाम में उसको लोगों तक पहुंचाने की। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि कई लोग इस मूवमेंट में जो कि मुस्लिम बैकग्राउंड से आते भी नहीं है वो लोग भी जुड़ रहे हैं। एंड वी हैव अ टीम इन एन एप्लीकेशन कॉल्ड डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड एक ऐसा ऐप है जिसमें हमारी टीम है, जो नॉर्मल लोग हमसे जुड़े हैं, और वो लोग रोज मेरी वीडियो को वो लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जाकर शेयर कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है, और आपने देखा होगा कि कई सारे एक्स मुस्लिम सामने से आकर कई चैनल्स भी ओपन हो रहे हैं। तो मुझे ये उम्मीद है कि अगर इसी तरीके से हम मेहनत करते रहें और लोगों का अगर साथ मिलता रहा तो डेफिनेटली हम आने वाले 5 सालों में या 10 सालों में इतनी कट्टरता जो लोगों में भरी हुई है उसको हम जाता हुआ देखेंगे। इस्लाम सिर्फ एक इस तरीके से हो जाएगा कि लोग उसको सिर्फ एज अ यानी चलो खुदा को मानना है तो इसलिए हम मान रहे हैं, बस इतने पे ही रह जाएगा। जो कट्टरता है लोगों के लिए, जो नफरत है और जो ये उनकी सोच है कि हम ही सबसे सही है, कम से कम वो उनके दिलों से निकल जाएगी। इंडियन एग्नोस्टिक, आपको कुछ ऐड करना है? देन वी विल टेक द नेक्स्ट कॉल। I think one of the biggest roadblock of this movement is ये जो मतलब ये आप बोलो साहिल, आपको बहुत कम लोग जानते हैं। This is the biggest roadblock. I think in India, I mean 5,000 from Muslim background will know Sahil. तो हमारा ये जो मतलब क्या बोला, टारगेट फीस इन मिलियंस एंड करोर्स, और 5,000 से कुछ नहीं होगा। और जाफर को भी शायद 20-30,000 या 50,000 जानते होंगे। तो हमें टारगेट सबके पास पहुंचाना पड़ेगा। ओनली आफ्टर रीचिंग टू एवरी हाउस ऑफ एवरी फैमिली जिसके पास इंटरनेट हो, तभी ये मूवमेंट बहुत आगे बढ़ेगा। एंड इट विल टेक टाइम। तो ये सबको काम करना पड़ेगा, नॉन मुस्लिम को भी काम करना पड़ेगा टू एंश्योर कि अगले 10 साल में, 5 या 10 साल में एटलीस्ट जो मुस्लिम हाउस के पास इंटरनेट है उनके पास मतलब दे शुड नो देयर इज समबडी, a guy named Sahil, a guy named Jafar, or whoever, or apostate imam. They should know and they are making videos and they should come to a video. तभी ये movement आगे बढ़ेगा. It depends on us. So may I suggest and I'll sign off then because I'm
Thanks a lot, Rudraji, Yeah, for just one motivating us. can I make just one suggestion on that? I feel the only thing that I feel lacking immediately is uh, the videos are too long. Like, the stream goes for 4-5 hours. So I would like to see, like, the way Pakistani ex-Muslims conduct. They have like 4-5 minutes videos, right? You Hmm. know whom I'm referring to, right? I mean, I don't Hmm. want to take names here, but Hmm. shorter videos. People in social media do not have time to watch 4 5. I mean, you have this initial great response, but that may not continue because of the long videos. People look at videos duration. If it's 5-6 hours, oh God, Hmm. I'm not going to watch this. They skip it. Uh, So Rudraji, just to answer on this, two ways we are dealing with this. One is that, from the long stream, what we do, we crop the important parts and then we re-upload, that particular discussion. One thing is this. एंड सेकेंड थिंग मैं हिंदी में बोल देता हूँ कि एक तो ये है कि जो लंबी लंबी स्ट्रीम होती है उसमें से जो इम्पोर्टेंट डिस्कशंस हमारे हुए हैं वो हम क्रॉप करके उसको अपलोड करते हैं, री अपलोड करते हैं एंड और जो हमारे दर्शक है उसको शेयर कर सकते हैं. सेकेंड चीज, जो शॉर्ट वीडियोस है बहुत जल्द मैं वो शॉर्ट वीडियोस अभी फिर से स्टार्ट करने वाला हूं, जो कि मैंने बंद कर दिया था 3-3, 4-4 या 10-10 मिनट के वीडियो. बहुत जल्द मैं वो भी स्टार्ट करने वाला हूं रुद्र जी. सो दिस इज द अपडेट टू ऑल आवर व्यूअर्स. thank you, and you're doing a great job. Keep up the good work. Thanks, guys. Thank श्योर you. श्योर. Bye. थैंक्स अ लॉट रुद्र जी. Thanks. Bye. थैंक यू. जी सलीम जी, आदाब. क्या हाल है साहिल भाई? हाँ, मैं फर्स्ट क्लास. आप कैसे हैं? हाँ बढ़िया, मस्त जी. है टनाटन. आज यास्मीन आंटी के तार ले हुए हैं. और सुनाओ जी. आपकी आवाज सुन के यानी वो जो एक स्ट्रेस वाला माहौल होता है वो दूर हो जाता है सलीम भाई. अरे वाह. थैंक यू. हम अच्छा, जब आपने सलीम भाई देवबंद का सफर तो कर लिया है. जी अब ये बरेलवी शरीफ का सफर कब होने वाला है आपका? बहुत जल्दी जमुनानगर मदरसे में भी जाने वाला हूँ. बहुत ही जल्दी सारी जगह जो है स्टिंग ऑपरेशन चालू रहेगा. और कुछ हो सकता है हरकत भी पकड़ में आई जाए कहीं ना जी कहीं. जी. ये बार आपको बहुत चौकन्ना होके जाना पड़ेगा क्योंकि यानी लोग जो है बहुत चौकन्ने हो गए होंगे कि इस तरीके से एक शख्स है वो एक शेर देवबंद में धाड़ अगर मार आ देता है. सकता है, हाँ, तो फिर वो हमारे वहां भी जा सकता है. कोई दिक्कत नहीं यार. एक्चुअली मैं इन लोगों के बीच का ही हूँ, इन्हीं के अंदर का हूँ. इसलिए मुझे इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं इनको लीड करना जानता हूँ. ये ना जी. जो फट्टू आदमी होता है ना उसको फौरन दाब देते हैं. हम्म. और जो आदमी उल्टा इनकी छाती में चढ़ जाता है ना उसको एक साइड जगह देना शुरू कर देते हैं. ये छोड़ो, जाने दो यार इसको. आपने सही. वीडियो में देखा होगा, वो मेरे को रोकने के लिए आ रहा था वीडियो को. हम्म. 2-3 ने मेरे को रोका. मैंने उसको मारा, मैं कहा तू वेट बनाने दे. मैंने कहा चल. वही उल्टा बैठा दिया उसको. पता क्या, हमें इस चीज को समझने के लिए ना, अगर हम कुरान हदीस वगैरह वगैरह इसको पढ़ रहे हैं ना, हम इसमें कमियां निकालते फिर रहे हैं, मूर्खता है हमारी. हमें तो खाली एक छोटा सा पॉइंट अगर गलत मिल रहा है ना, वो ही हम्म. काफी है उस किताब को आग लगाने के लिए, उसको दफा करने के लिए. सही बात है. क्योंकि किसी ईश्वर अल्लाह का जो कलाम होगा, उसकी जो किताब होगी, उसमें तो 100% गलती हो ही नहीं सकती, एक बाल बराबर भी. हम्म. नहीं, असल और में सलीम भाई होता क्या है ना कि यही तो मसला है ना. इस्लाम का और मुसलमानों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो एक गलती को भी गलती मान ही नहीं सकते, क्योंकि अगर एक गलती भी अगर गलती मान लिए तो ऑटोमेटिकली वो इस्लाम की जो बाउंड्री है उससे वो खारिज हो जाते हैं. तो हाँ वो तो वो नहीं चाहते हुए भी वो नहीं मान सकते, यानी चाहते हुए भी वो चीज हाँ नहीं कर सकते वो लोग. हाँ. मेरे साथ जो बातें होती हैं, मैं रियल लाइफ में हर किसी के साथ में इस तरह खुल के बात करता हूँ. रियल लाइफ में बिल्कुल खुल के हम्म. मैं उनको बाकायदा तोड़ देता हूँ, बाकायदा सब कुछ सामने रख देता हूँ. लो भाई, यहाँ पे देखो ये आ रहा है, लिखा हुआ आ रहा है. वो हम्म. बोले ये कहीं ना कोई ऐसी गड़बड़ है, वो उस बात को जो है इग्नोर कर देते हैं. हम्म. हाँ सही पता बात चल है. सलीम भाई, जाता है.
जी। सलीम भाई, मैं कहूँगा रिलीजन में गलतियाँ मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि रिलीजन का जो बुक्स लिखा गया है ना, ये उस टाइम का सोसाइटी का हिसाब से लिखा गया है, जो आज की सोसाइटी के साथ कंपेटेबल ही नहीं है। तो उसका सोसाइटी हाँ में तो मतलब या हाँ। हाँ, और तो गलतियाँ मिलना कोई। हमारे वाली तो जो है नींद की बड़बड़ाहट में निकली हुई किताब है। हाँ, अच्छा सलीम भाई, वो आप नहीं। स्ट्रीम में ही रहिए, इनफैक्ट हम दूसरे कॉलर को भी ले इनफैक्ट मैं लेते हैं। हाँ, हाँ, अच्छा जी। इंडियन साहिल भाई, एग्नोस्टिक, आप कुछ बोल रहे हो? हाँ, मैं एक्चुअली एक बात कहने आया था। उस हम्म। दिन एक फौज आर्मी मैन का बेटा आया था, आई थिंक उसका नाम है कविर। तो कबीर कबीर। एक्चुअली उसने, हाँ कविर, उसने ये कहा था कि ही इज अ वेरी पैट्रियोटिक एंड देशभक्त, ये वो। और मैं हम्म। नॉन मुस्लिम को कहना चाहूंगा कि एक क्वेश्चन आता है सब में, हम्म। देश आगे है या रिलीजन आगे है? ये हम्म। क्वेश्चन बहुत गलत है। क्यों हम्म। बता रहा हूँ मैं? रिलीजन अलग चीजें है, कंट्री देश अलग चीजें हैं। हम्म। कोई भी मुस्लिम हो, दुनिया में कोई भी मुस्लिम हो, उनके साथ अरब कंट्रीज का थोड़ा लगाव रहेगा ही रहेगा। इंडिया हम्म। का हो या अमेरिका का हो, क्योंकि मक्का मदीना वहाँ का है, प्रॉफेट हम्म। मोहम्मद इज फ्रॉम दैट प्लेस। इसी हम्म। तरह अमेरिका या यूरोप में जो बहुत लोग इस्कॉन में जो हिंदुइज्म में कन्वर्ट हुए हैं, उनका हम्म। देखना इंडिया से साथ बहुत लगाव है, एंड दैट हम्म। मेक सेंस। कोई भी हम्म। क्रिश्चियन का भी देखना जेरूसलम, तो तुम कितना देशभक्त हो वो मैटर नहीं करता। मैटर हम्म। करता है कि तुम्हारा जो कोई भी रिलीजन हो, जो खराब चीजें हैं वो तुम डिफेंड करते हो कि नहीं। या लेकिन इंडियन एग्नोस्टिक भाई, अगर कभी समझो हाँ, इंडिया और अमेरिका का कुछ होता है, कुछ प्रॉब्लम होता है, तो वो जो इस्कॉन वाले हैं, उन्होंने पहले अपने देश के साथ खड़ा होना चाहिए, मेरे हिसाब से। अच्छा, ये चलो सही चलो, है। ये अलग बात, ये तुम्हारे हिसाब से छोड़ दो। हाँ ठीक भले है, वो उनका कुछ भी अलग इशू। लगा हो, क्योंकि हाँ, क्योंकि अपन जहाँ पे हम छोटे से बड़े हुए, जो जो मिट्टी ने हमको सहारा दिया, जो लोग अपने हैं, समझे, भले आप अलग हो हाँ, उनसे, आपका रिलीजन अलग है, आपका